Hello and welcome to yet another episode of the Unnamed Podcast. And of course, I am your host, RJ Akash, aka Evil Monkey. और The Unnamed Podcast में मैं बात करता हूँ कुछ ऐसी अमेजिंग पर्सनालिटीज़ के साथ जो अपनी लाइफ में तो चेंजेस ला ही रहे हैं, साथ ही साथ दे आर डूइंग वंडर्स फॉर द सोसाइटी. और इन केस अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है, डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस पॉडकास्ट वेयर एवर यू आर गेटिंग योर पॉडकास्ट. और मेरी आज की जो गेस्ट हैं, शी इज़ well, she has been featured on this show earlier also. She was the producer of the Oscar-winning movie Period, End of a Sentence. और अजय दीप से मैंने बात करी अबाउट सेक्स इन इंडिया. जी हाँ, हमारे देश में लोगों को सेक्स करना बहुत पसंद है. एंड वेल दैट शोज बिकॉज वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑन दिस प्लानट. एंड वेल आई थिंक द वे वी आर गोइंग, हम कुछ सालों में शायद चाइना को भी बीट कर दें. सो वी लव टू डू सेक्स एंड वी लव टू नॉट टॉक अबाउट इट एंड कंसिडर इट एज अ टैबू. Pretty interesting, isn't it? Talking about sex always gives creep to the people, but we love to have it. And the funny part is that कि we actually don't know our sexual laws. Yeah, क्या आपको पता है कि actually में government started clinic to provide health education to adolescents, and there actually is a clinic in a hospital जहाँ पर आप जाकर if you are a adolescent you can learn about sex, you can learn about condom, you can learn about masturbation and everything. थोड़ा progressive लग रहा है ना, especially when we talk about in terms of India. Yeah. So चलिए ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में मैं बात करूँगा अजय दीप से. So let's talk to Ajay and let's talk about sex in India. हेलो अजय, वेलकम बैक टू द अननेम्ड पॉडकास्ट. हेलो. कैसा चल रहा है? जब लास्ट टाइम हमने बात करी थी, सो लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट menstruation and like your Oscar winning movie, because I was thinking about doing this show with a sexologist, but फिर मेरे दिमाग में आया कि like you told me that you have been working very closely with people relating to having sexual problems and when like reproductive health rights. तो मैंने सोचा you might be the better person to talk to in terms of very different things when it comes to sex and abortion and legalities regarding that. श्योर. तो बेसिकली ये जो पूरी गैमेट है इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स कहते हैं, और SRHR छोटे में बोल देते हैं. SRHR में आपकी प्यूबर्टी, सेफ सेक्स, कॉन्ट्रासेप्शन, STDs, मेंस्ट्रुएशन, अबॉर्शन, प्रेगनेंसी, ये सारी चीजें आ जाती है. And also a little bit of mental health which is related to all of these things. तो ये SRHR का होल गैमेट है, और हम एक्शन इंडिया के थ्रू एंड मैं पर्सनली भी करीब अब 10 साल से इसी टॉपिक पे काम कर रही हूं. सही. तो मेरा पहला तो यार मतलब अभी के टाइम में लाइक वी आर लिविंग अंडर कोरोना कोविड, और लाइक सबसे बड़ा उसमें ये है कि आप किसी को छू नहीं, मतलब यू कैन नॉट बी वेरी क्लोज टू समबडी. एंड लाइक इफ वी टॉक अबाउट people like boyfriend, girlfriends, husband, wife, so of course if they want to get intimate with each other, so they have to be close to each other. So ab is time in the time of COVID, how do you think how the sexual life of people is going to change? तो जिनके आई थिंक जिनके इंक्लूसिव या सिंगल पार्टनर्स हैं, like husband wife, of course if they're not cheating on each other, or boyfriend girlfriend, of course if they're not double timing or triple timing, उनके लिए इतना कुछ नहीं चेंज हो रहा, because you know where that person is going, whom these people are meeting, what are they doing outside. और अभी तो लॉकडाउन में hardly you're moving outside. तो if you have a single partner right now, that is healthy. पर अगर आप random sex वाले इंसान हैं, if you are a playboy or a flamboyant human being who goes for random sex with like one night stands or fuck buddies, आपको दिक्कत हो सकती है, because ये HIV का भी नेक्स्ट लेवल है. ये बीमारी HIV you can still protect yourself through a condom. हाथ लगाने से नहीं फैलता HIV, किस करने से HIV नहीं होएगा, पर अगर आप सेक्स करेंगे तो HIV होगा. कोरोना तो आपके हाथ लगाते ही हो जाना है, सेक्स तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी.
तो उस लेवल पे या आई थिंक उन लोगों के लिए दिक्कतें आएंगी। और मैं रिकमेंड भी यही करूंगी कि जब तक प्रॉपर वैक्सीनेशन ना तैयार हो जाए, एंड आई एम नॉट टॉकिंग करेक्ट अबाउट क्योर, मैं दवाइयों की बात नहीं कर रही, मैं वैक्सीन की बात कर रही हूँ कि कोरोना का जब तक हाँ वैक्सीन ना तैयार हो जाए तब तक मैं लोगों को सजेस्ट करूंगी कि रैंडम सेक्स बिल्कुल ना करें। करो तो मतलब मैं क्या रोकूं, जिसके तो नहीं रोक पाऊंगी कोई बेडरूम भी में। नहीं रोक सकता हाँ, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए बेटर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मे बी इन अनदर 6 months वी होपफुली विल हैव अ वैक्सीन। 6 महीने विदाउट सेक्स रहना कोई बड़ी बात नहीं। हम अपनी जिंदगी के एटलीस्ट 18-19 साल तक तो हम सारे ही हाँ लोग सम विदाउट सेक्स रह लेते कुछ हैं। लकी लोग होते हैं जिनकी किस्मत बहुत जो हाँ 12-13 साल और 14 साल की उम्र में उनके साथ करेक्ट कुछ हो जाता है। अदरवाइज वी आर नॉट दैट एग्जैक्टली सेक्सुअली एक्टिव। या कुछ अनलकी लोग होते हैं जिनके साथ करेक्ट कोई करेक्ट हादसा हो जाता है। अदर देन दैट हम लोग एटलीस्ट 16-17 साल की उम्र तक तो इस हम्म चीज से थोड़ा दूर रहते हैं। तो जब हम 16 साल कंट्रोल कर सकते हैं अपनी बॉडी हम्म की नीड को, तो 6 महीने अगर हम रैंडम सेक्स में नहीं पड़ेंगे तो कुछ करेक्ट नुकसान करेक्ट नहीं होगा। इट्स हेल्थियर फॉर यू, दैट अदर पर्सन, एंड ऑल्सो बिकॉज यू विल बी अ कैरियर। एब्सोल्युटली हाँ यू नेवर नो ना कि कुड बी अदर पर्सन कुड बी एसिम्प्टोमेटिक एंड लाइक तुम उसके कांटेक्ट में यस, तुमको सिम्टम्स हो जाए और तुम निकल लो, या तुम दोनों ही एसिम्टोमेटिक रहो, तुम हाँ अपने घर जाके अपनी बहन को, अपनी माँ को, या पड़ोस में अपने सबसे अच्छे दोस्त को करेक्ट वो कोरोना करेक्ट दे दो। तो वो उस लेवल पे आई थिंक थोड़ा सा रिस्ट्रेन करना अपने आप को, थोड़ा सा एब्स्टिनिज्म ट्राई करने में कुछ नहीं जाएगा कुछ सही कुछ बात है और महीनों के लाइक लिए। अभी अभी जैसे हाल ही में लाइक बहुत सारी न्यूज चैनल्स पर भी आया कि लाइक डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ड्यू टू कोरोना वायरस लॉकडाउन सो लाइक व्हाई डू यू थिंक इट इज हैपनिंग कि लाइक सी सो हम्म बहुत सारे रीजंस है। एक रीजन तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लॉकडाउन में हो आप, तो अगर आप इतना घर में बैठे हुए हो तो आप कितना तो टीवी देख लोगे और कितना करेक्ट बालकनी में जाओगे। एक टाइम आएगा यू वांट करेक्ट अ रिलीफ, अब वो हाँ रिलीफ भी नहीं मिल रही है, करेक्ट वेंट आउट भी नहीं हो रहा है, तो वो हम्म अग्रेशन में निकलता है। बहुत नेचुरल हम्म चीज है दैट यू गेट अग्रेसिव। अब औरत जो है वो पैदा होने के बाद बड़ी ऐसे की जाती है कि उसे अग्रेसिव हम्म नहीं रहना है, जबकि हमारा इनर्ट नेचर ऐसा कुछ नहीं है। हम भी उतना ही चिल्ला सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, धोखाधड़ी कर सकते हैं बिल्कुल जितना एक मर्द कर सकता है। बट हमें हम्म बड़ा वैसे नहीं किया जाता। और लड़के को हमेशा मर्दानगी वाला बड़ा किया जाता, तू तो मर्द है, तेरे हाँ को दर्द नहीं होगा, तू करेक्ट ये नहीं, तू वो नहीं। अब दो ऐसे लेवल पे चीजें अगर एक साथ 24-24 घंटे रहेंगी तो करेक्ट झगड़ा तो हो सकता है। दूसरा जो मेरे को लगता है रीजन, जो कि हम्म आई थिंक विच इज अ रीजन, इज द एवर ग्रोइंग लेसनिंग ऑफ परचेजिंग कैपेसिटी। आप लॉकडाउन में कमा कितना पा करेक्ट रहे हो, तो आप फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालोगे? कितने बिल्कुल लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, कितने मजदूरों के घर बिल्कुल नहीं रहे, कितने लोगों का हम्म खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो करेक्ट गुस्सा कैसे करेक्ट करेक्ट निकलेगा? तो वो आप पहले ही अपनी बीवी को हम्म दारू पी के मारते थे हैं, और अब तो आपके पास पूरे करेक्ट मौके हो गए, हम्म 24 घंटे घर में हो, तो अब तो आप दिन में 3 बार पिटाई करोगे करेक्ट डोस की तरह। पहले बेचारी को हम्म रात में 1 बार डोज मिलती थी, अब आप उसे 3-3 बार ट्रू दिन में डोज दे रहे हैं। क्योंकि आप फिर भी एक टाइम बाहर खाना खा लेते थे क्योंकि आप हम्म बाहर मजदूरी कर रहे थे। अब घर घर में तीनों टाइम खा रहे हैं, कभी नमक हल्का सा ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो हमारे हिंदुस्तान में तो इट्स नॉर्मल तो मार देना अगर नमक चीनी ज्यादा है, कम हो जाए तो। इसलिए वायलेंस बहुत बढ़ रहा है, और सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ रहा, अराउंड द वर्ल्ड हम्म डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है करेक्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। दे बीन मर्डर्स ट्रू कि लड़की औरतें मार दी हैं मर्दों शिट ने पीट पीट के, हम्म और उसमें राइज हुआ है तो केस। इसका इसका इसको बचाने के लिए इसको रोकने के लिए क्या व्हाट कैन वन डू व्हाट कैन वन डू इज ट्राई टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। ये अकेले आप हम्म नहीं फेस कर रहे हो, जो सामने आपके साथ है वो भी वही हम्म सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगर आप नहीं कमा पा रहे तो उस औरत के लिए भी घर चलाना उतना ही मुश्किल हो रहा है, आपको खाना हम्म खिलाना उतना ही मुश्किल हो रहा है। तो अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाओगे तो शायद हाथ नहीं उठाओगे। एंड सबसे बड़ी बात है, इसका कोई कोई और मेरे को तोड़ नहीं लगता। मुझे लगता है कि और डू यू वायलेंस अपने में ही गलत चीज है, हाँ हाँ किसी डू यू पे थिंक हाथ उठाना डू यू थिंक कि जस्टिफाइड इसमें है ही इसके नहीं। पीछे कुड बी द सेक्सुअल
like because like people are locked down with each other and like they can't go outside, एक sexual frustration भी बन गई है लोगों के अंदर बहुत ज्यादा, so that could be also one reason. या ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो अ रीजन। अब जिस आदमी को बाहर की मुर्गी हाँ. इतना खाने की आदत हो, 3 महीने से बेचारा घर में घर की दाल खा रहा है, तो चिढ़ेगा तो है ही। True, true, very true. अच्छा, and you said कि like हम लोगों ने जब बात करी थी, so we talked about कि like India में there are a lot of rights that people have no clue about. So like when we talk about sexual reproduction rights, abortion rights, उसके around legalities क्या क्या हैं. So if we talk about sexual reproduction, तो उसके अंदर health rights क्या हैं? Like what are the health rights for women, for men, क्या है उसके अंदर? सो बेसिकली अगर आप हिंदुस्तान की हेल्थ पॉलिसी उठा ले, तो आपको पता चलेगा कि हर एक एज ग्रुप के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स के लिए बहुत कुछ है। जैसे फॉर अगर मैं ओवर द टॉप एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो एक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम चलता है विच इज सेंटर्ड अराउंड अडोलेसेंट हेल्थ, यानी प्यूबर्टी के टाइम की हेल्थ, विच इज एक्सटेंसिवली ऑन सेक्सुअल हेल्थ। कि आप बड़े हो रहे हो तो आपके शरीर में क्या चेंजेस आएंगे, कॉन्डम्स क्या होते हैं, सेक्स क्या होता है, मास्टरबेशन क्या होता है, प्लेजर क्या होता है, आपके आपके सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या हैं। तो ये पूरा का पूरा एक पॉलिसी है जो कि इनफैक्ट इस लेवल पे डेवलप्ड, इट्स अ वेरी नाइस पॉलिसी। बस हिंदुस्तान में कोई भी चीज इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी दुनिया का सबसे बेहतरीन लेवल का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हिंदुस्तान की हालत देखे, हम कितने सोशलिस्ट और कितने सेक्युलर हैं, हम सब अपने दिल से जानते हैं। तो ये पॉलिसी जो है वो ये सीधे कहती है कि एक मतलब एक क्लिनिक होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड होगी सेक्सुअल हेल्थ फॉर एडोलेसेंट्स के लिए, जो कि इन्हीं सब चीजों पे काउंसलिंग देगी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या, आपने क्लिनिक बना दी। पहले ये क्लिनिक ना हॉस्पिटल से बाहर होती थी, इसको अर्श बोलते थे, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक। तो ये हॉस्पिटल से बाहर एक अलग सी क्लिनिक बना देते थे, वो क्लिनिक में कोई गया ही नहीं, वो खाली पड़ी नहीं। कैसे जाएंगे? आपकी बस्ती में अगर आप जाएंगे 16 साल की उम्र में वो क्लिनिक में, तो आपके पड़ोस में सबको पता है कि आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए हैं या आपको सेक्स में इंटरेस्ट है। आपके माँ बाप को पता चल जाएगा आपको सेक्स में इंटरेस्ट है, पिटोगे ठुकोगे। हिंदुस्तान में अगर एक 15 साल की लड़की का बॉयफ्रेंड पता चलता है तो उसका क्या हाल करते हैं? या लड़के का पता चलता है तो उसको ये तो नहीं कहते वाह बेटा कोई बात नहीं, अगली बार अपनी गर्लफ्रेंड घर ले आइयो, साथ चाय पियेंगे। वो तो शायद मेरे ख्याल से 26 और 27 साल के लड़के लड़की के साथ भी नहीं है बिहेवियर। अरेंज मतलब आज भी हम हमारी फैमिलीज यही चाहेंगे कि अगर लव भी हो तो वो अरेंज हो जाए। हम लव वाले कॉन्सेप्ट या लव मैरिज वाले कॉन्सेप्ट या चूजिंग योर ओन पार्टनर वाले कॉन्सेप्ट में शायद अभी तक पहुंचे नहीं है। हम अभी भी फैमिली, हाँ, but I think अभी थोड़ा like people are becoming a little bit more open about this idea. Do you think? Yeah, of course. There are a lot of live-ins happening. People are marrying on their own choices. विडो रीमैरिज हो रही है, सेकंड मैरिजेस हो रही हैं, लोग डिवोर्स के बाद दोबारा शादियां कर रहे हैं, और लड़के भी और लड़कियां भी। तो आई थिंक चेंज तो बहुत आया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा चेंज आना है। जो ये आरकेएस के है, इसमें ऐसी क्लिनिक फिर अंदर आ गई, आप उधर जाओ, कॉन्डम से बात करो, आपको एक काउंसलर मिलेगी या मिलेगा जो कि आपसे प्रॉपर सेक्स, मेंस्ट्रुएशन इन पे बात करेगा। इसके अलावा एक नाको है हमारे पास, एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सटेंसिवली वर्क्स ऑन एचआईवी एड्स, विच इज अगेन एन sexually transmitted disease. Then we have the whole gamut of maternal health rights, जहाँ पे औरत को बकायदा इंजेक्शंस की सुविधा है। आपकी आशा जो है, आशा जो कि इट्स अ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर, वो प्रेगनेंसी आपकी पूरी ट्रैक करेगी, आपको आपकी दवाइयाँ पहुंचाएगी, चाहे वो आपके थायराइड से रिलेटेड दवाई हो या आयरन की डोसेज हो बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट। फिर हमारे पास एक बहुत अमेजिंग राइट है जो कि अभी भी यूएस के बहुत सारे स्टेट्स में औरतों के पास नहीं है, विच इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ, तो वी हैव अ राइट फॉर अबॉर्शन। बट लेकिन अब तुमने बोला राइट फॉर अबॉर्शन, तो अब इस राइट का यूज और मिसयूज कितना होता है? तो बेसिकली अब क्या सीन है कि आधे से ज्यादा जेंट्री को ये पता ही नहीं है कि आप अबॉर्शन करा सकते हो और ये लीगल है। हमको क्या पता है कि आप शादीशुदा हो तो अबॉर्शन करा सकते हो।
विच इज एक्चुअली अगर एक्ट में Okay. देखें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक जगह पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में कॉन्ट्रसेप्शन फेलियर फॉर मैरिड वुमेन। आप उसके अलावा देर आर 3-4 पॉइंट्स जिसके अंडर आप जाके अपना अबॉर्शन करा सकते हैं। वन ऑफ द पॉइंट्स इज दैट यू आर नॉट मेंटली एंड फिजिकली capable to take Okay. care of the child. Then there is contraception failure, pregnancy due to rape. तो ये सब चीजें हैं जिनकी वजह से आप Correct. अबॉर्शन करा सकते हैं, और आपको मैरिड या अनमैरिड होने मतलब वो स्टेटस रिवील भी करने Okay. की जरूरत नहीं है डॉक्टर को। और जो फॉर्म भरते हैं अबॉर्शन के टाइम पे कि मतलब मैं अबॉर्शन अपनी मर्जी से कर रही हूँ और ये और वो, उसमें भी कहीं आपके गार्जियन या पति के सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं होती। अगर डॉक्टर कह रहा है ये तो आप उसको पलट के बोल सकते हैं कि सर प्लीज लॉ की बात कीजिए, मेरे पति की Correct. क्या जरूरत है यहाँ पे। आप 2-3 महीने तक की प्रेगनेंसी को आप Okay. अबॉर्ट करा सकते हैं। हाँ, और अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या आते हैं। सो आई होप यू नो एंड लिसनर्स आल्सो नो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन Correct. थ्रू पिल्स आल्सो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईपिल. आईपिल इज नॉट एन अबॉर्शन पिल. आईपिल इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और एन इमरजेंसी पिल कि आपने सेक्स कर लिया और वो फीटस डेवलप या फर्टाइल होने से पहले ही आपने बैरियर कर दिया, तो प्रेगनेंसी हुई ही नहीं, वो हुई नहीं। जबकि अबॉर्शन पिल का मतलब है आप प्रेग्नेंट हैं, आपके पेट में, एंड आई डोंट लाइक कॉलिंग इट बच्चा बिकॉज बच्चा पैदा होने के बाद होता है। Correct. आपके पेट में फीटस है, और वो भी फीटस बना भी नहीं है, फीटस भी 3 महीने के बाद बनता है। तो यू आर प्रेग्नेंट। तो अब उसमें क्या है कि एक तो एमटीपी किट आती है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल ड्रग्स, जो कि गोलियों से ही आप अपना Okay. अबॉर्शन कर सकते हैं। उसके बाद एक गोली होती है जो कि आपकी बच्चेदानी यानी यूट्रस को साफ कर देगी और वो जो भी Okay. फीटस है उसको निकाल देगी। ये पिल आप 2 महीने तक ले सकते हो सेफली, जो कि हमारी मेडिकल गाइडलाइंस हमें अलाउ करती हैं। उसके बाद आप जाते हो सर्जिकल मेथड्स में विच इज Correct. लाइक द नॉर्मल अबॉर्शन। वो 3 महीने तक करा सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आई थिंक वो 4 से 5 Okay. महीने तक हो जाएगा, that you will be legally allowed to do an abortion till the 5th month Okay. or 4th month of your pregnancy. अब एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, डॉक्टर तैयार ही नहीं होगा कई बार Okay. आपका अबॉर्शन करने में, और कई बार ऐसा होगा कि वो अबॉर्शन फ्री हो सकता है पर आपसे पैसे मांगे जाएंगे बिकॉज आप शादीशुदा नहीं है या आप Okay. थोड़े यंग दिखते हैं। हाँ, तो जैसे कि जो अबॉर्शन टेक्निकली 4,000, 5,000, 2,000, 3,000 में होना चाहिए, उसके लिए 20-20, 25-25, 30-30 हजार रुपए डॉक्टर और Okay. नर्सेस चार्ज करते हैं। और उसके बाद भी अनसेफ अबॉर्शन करते हैं कि प्रॉपर प्रोसीजर्स नहीं फॉलो करते हैं, और कई बार अबॉर्शन में ही औरत अच्छा. निकल लेती है। There's one example. I was doing this conference on MTP Act. अभी नेशनल एडवोकेसी कॉन्फ्रेंस जस्ट होके चुकी है मार्च Okay. में, 2-3 मार्च को, विच वॉज ऑन द सेम थिंग कि हमें एज मतलब टाइम पीरियड फॉर अबॉर्शन बढ़ाना चाहिए, एंड वी वर ट्राइंग टू एडवोकेट दिस थिंग टू द गवर्नमेंट कि आप बढ़ाइए क्योंकि ये जरूरत है, ये मांग है अभी की। तो मेरे साथ ही एक सोशल वर्कर है, शी इज वेरी एजुकेटेड एंड ऑल। Okay. उनकी पहली बेटी हो गई, दूसरा बच्चा जब हुआ ना तो वो बच्चा जो था वो Okay. पेट में मर गया, मिसगैरेज हो गया। अब टेक्निकली मिसगैरेज Correct. के बाद अबॉर्शन करना पड़ेगा आपको, बच्चा Correct. मतलब वो निकालना पड़ेगा। इन्होंने स्पैटुला मेथड यूज किया विच इज राइट नाउ नॉट लीगल। स्पैटुला समझ गए? स्पैटुला Okay. यानी करची जैसा। तो पहले क्या होता था कि एक करची, लोहे की करची या सैनिटाइज करची आपकी Okay. यूट्रस में घुमा देते थे, Okay. उससे सफाई कर देते थे। तो उसमें कई बार Oh. यूट्रस ही खत्म हो जाता था कि इतनी जोर से स्पैटुला घुमाया Oh. कि खत्म हो गई आपकी स्किन। तो और कई बार कट्स लग जाते थे। तो मतलब बेसिकली बहुत ही अनसेफ तरीका है। उसको बिना Oh. एनेस्थीसिया दिए उसके साथ, एक्चुअली वो उसके अपने वर्ड्स हैं कि Oh. मैं गाय की तरह चिल्ला रही थी, Okay. और एक बार नहीं उसके साथ ये 3 बार किया गया, उसके बाद भी उसके Oh. पेट की सफाई नहीं हुई। अल्टीमेटली शी लेट इट गो, उसने कहा जो होगा देखा जाएगा, मुझे अबॉर्शन करना ही नहीं है। ये तो हिंदुस्तान की हालत है, एंड शी इज एन एजुकेटेड वुमेन,
who's working in the social sector, social worker, activist, knows her rights, empowered, self-reliant, independent, earning, सब होने के बाद उसके साथ ये हो रहा है। तो एक गांव की अनपढ़ औरत जिसके करेक्ट। ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, जो उनको नहीं खिला पा रही, और वो अगर आके डॉक्टर को कह रही है कि मेरा पति नहीं आएगा, बेवड़ा है या भाग गया है, पता ही नहीं है साल भर से कहाँ है, मेरा ही अबॉर्शन कर दो, तो वो नहीं बट करेंगे लीगली दे आर बाउंड टू डू इट। नहीं, हाँ, लीगली दे कैन नॉट स्टॉप इट अनटिल। सो अब क्या है, अब इसमें भी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। हमारे हिंदुस्तान का सेक्स रेशियो बहुत स्क्रूड है। हमारे यहाँ बेटे की चाह इतनी ज्यादा है कि हम उसके चक्कर में बेटियां मार देते हैं। मतलब सुखी परिवार तब है जब आपके मतलब अगर आपकी एक बेटी हो गई है तो बेटा भी पूरा कर तभी लेंगे, होगा हाँ। परिवार जब आप एक बेटा कर लोगे। हाँ, और 2 बेटे हैं तो नथिंग लाइक इट, पर 2 बेटियां हैं तो तीसरा बच्चा करो, एक बेटा तो होना चाहिए घर में। ये एक लॉजिक है। तो 90s में जब सेक्स रेश मतलब जब हमारी सेंसेस आई तो हमें समझ आया, 1994 में एक्ट पास हुआ जिसको कहते हैं प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। तो ये एक्ट जब पास हुआ तो जब 91 का सेंसस आया तो समझ आया कि भैया औरतों और आदमियों के सेक्स रेशियो में तो जमीन आसमान का फर्क होता जा रहा है। इनफैक्ट अगर मैं ये मतलब इट्स लाइक अ मॉकरी ऑन द इंडियन नेशन, ये हमारे हिंदुस्तान पे एक मजाक है कि दुनिया भर में पर 1000 मेल्स पे मर्द गिने जाते हैं और हिंदुस्तान इज वन ऑफ दोस कंट्रीज जहां पर 1000 मेल्स पे फीमेल्स गिनी जाती हैं, क्योंकि बायोलॉजिकली औरत का शरीर आदमी के शरीर से ज्यादा इम्यून एक्टिव होता है और सरवाइव भी ज्यादा करता है। तो टेक्निकली औरतें ज्यादा बचती हैं और आदमी बचपन में जल्दी मतलब लड़के जल्दी जा सकते हैं, मिसगैरेज हो सकता है या न्यूट्रिशन से मर सकते हैं। औरतों का सर्वाइवल रेट ज्यादा है। तो दुनिया भर में उस वजह से 1000 फीमेल्स पे मेल्स गिने जाते हैं, पर हिंदुस्तान में हमेशा से 1000 मेल्स पे फीमेल्स गिनी गई है। और वो उस लेवल तक पहुंच गया कि हमारा सेक्स रेशियो आई थिंक हरियाणा में और राजस्थान में बहुत नीचे चला गया था सारे इंडिया में एक्सेप्ट फॉर केरला एंड 1 or 2 states in the northeast. Everywhere the sex ratio for females was down. I think 950,000, 980,000, 1,100, 1,001, 1,010 ये नॉर्मल है। पर अगर 100, 150, 200 का गैप आ रहा है तो इसका मतलब आप लड़कियां पैदा ही नहीं होने दे रहे, बिकॉज लड़कियों का तो सर्वाइवल रेट ज्यादा है, वो कम कैसे होगा? करेक्ट, इसका मतलब आप मार रहे हैं। तो अब उसमें क्या हुआ, जब ये सब समझ आया तो ये पीसीपीएनडीटी एक्ट आया। अब उसके हिसाब से आप लिंग जांच नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिटरमाइन द सेक्स। लेकिन ये अभी भी बहुत जगह ये हो रहा है, मतलब मैं तुम्हें तरीके बताती हूँ। अगर नीली इंक से लिखा है तो लड़का है, अगर लाल इंक से लिखा है तो लड़की है। जय माता दी बोला तो लड़की है, जय श्री राम बोला तो लड़का है। अरे आपको तो पार्टी देनी चाहिए, लड़का है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लड़की है। दिस इज देयर वे ऑफ नॉट क्लियरली टेलिंग यू द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बट लेटिंग यू नो व्हाट इज देयर, एंड दे डू इट ओपनली। इट्स हैपनिंग अभी भी, जबकि बीच में इतने सारे केसेस हुए जहाँ पे फीटसेस पकड़े गए अस्पतालों से और डॉक्टर्स की क्लिनिक्स बंद, उसके बाद भी अभी खुले धड़ल्ले में होता है। इनफैक्ट हरियाणा में तो मुझे ये नई चीज पता चली थी कि अल्ट्रासाउंड मशीन एक मोबाइल के साइज की भी है। तो आप वैन मोबाइल तो क्या करते हैं, वैन ले जाते हैं गांव गांव में, वहां वो अल्ट्रासाउंड मोबाइल मशीन से ही चेक करते हैं औरत का फीटस और वैन के अंदर ही अबॉर्शन कर देते हैं। तो कुछ लीगल आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ये एक्ट इसलिए बना था कि जितनी अल्ट्रासाउंड मशीन है वो रजिस्टर हों और वो उनपे जो भी टेस्ट होते हैं वो सारा रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को जाए। अब उसमें भी क्या है, मैं दिल्ली स्टेट की सुपरवाइजरी बोर्ड की मेंबर हूँ, which is the appellate authority in PCPNDT Act, and मैं 1.5 साल से मेंबर हूँ, रास्ते के एक मीटिंग में नहीं है। तो ये हालत है। हाँ, आई एम लाइक पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट बोर्ड कमीशन, और मैं आज तक कभी वो मीटिंग के लिए नहीं। तो मतलब हमारे इंडिया में बोलने के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है, बट सैड ट्रूथ इज कि लाइक और
सब बोल ही रहे हैं लेकिन कोई कुछ कर सिर्फ नहीं रहा, बोल ही एंड रहे इसमें हैं। लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन है कि लाइक हाउ मच आर पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि लाइक डॉक्टर अपनी मर्जी से तो नहीं करेगा ना कि लाइक मैं कर देता हूँ, बट लाइक लोगों की कितनी चाह है इसमें। तो बेसिकली हम्म। डॉक्टर भी तो आप ही की तरह बड़ा हुआ है। वो भी तो उतनी ही पितृसत्ता या पेट्रियार्कल सोच लेके बढ़ रहा है कि अगर घर में बेटा नहीं है तो हम्म। आपकी चिता को आग कौन लगाएगा, और अगर आपके बेटे ने आग हम्म। नहीं लगाई तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, या आपका वंश आगे कौन बढ़ाएगा, हम्म। आपका नाम आगे कौन कैरी करेगा। बट तो ये ऐसा सीन है कि कुछ हद तक हम्म। फैमिलीज का प्रेशर इतना हो जाता है कि औरत भी एक टाइम को मान हम्म। जाती है कि मुझे बेटा तो करना पड़ेगा, बिकॉज आपका ना सोशल स्टेटस फैमिली में एकदम से बढ़ जाता ओके। है जैसे आप बेटे की माँ बनने हम्म। लगती हैं। इज्जत बढ़ जाती है हम्म। घर में कि अरे इसके तो बेटे हैं। तो वो उस वजह से इतना शुरू हो गया कि आज 21st सेंचुरी 2020 में भी पीपल हु आर एमबीएज हु हम्म। आर अर्निंग इन लैक्स स्टिल वांट्स अ और ये बेबी आजकल की बॉय। सोसाइटी में भी है, दिस इज लाइक इन मॉडर्न सोसाइटी ऑल। एंड हाँ 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 हाँ, फ्लैट ओनिंग, अपार्टमेंट ओनिंग। वेल एजुकेटेड अपार्टमेंट। जेंट्री डेमोग्राफी। या in fact to that level that they will go to places like Singapore to get an IVF, that they are able to determine the ओ। sex of the child then and there। इसीलिए इसीलिए 1994 में इस एक्ट का हम्म। नाम था सिर्फ पीएनडीटी, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, यानी आप बच्चा पैदा होने से पहले, हम्म। नेटल यानी माँ बनने से पहले, ये कोई भी डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज करके हम्म। लिंग नहीं जांच कर सकते। जब ये सारी चीजें होने लगी तो पीसी ऐड हो गया, प्री कंसेप्शन, चलिए। यानी प्रेगनेंसी से पहले भी करेक्ट। आप डिटरमाइन नहीं करेंगे कि हम्म। आपको बेटी चाहिए या बेटा चाहिए। ओके। तो लोग सो सिंगापुर लाइक नाउ भाग दे जाते आर हैं। डिटरमाइनिंग कि भाई बिफोर प्रेगनेंसी ओनली कि व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड इज। हाँ, तो बेसिकली नाउ यू डिटरमाइन इवन द वे हम्म। यू वांट योर चाइल्ड टू लुक। व्हेन इट कम्स टू लिव इन रिलेशनशिप, क्योंकि आजकल के टाइम में लिव इन रिलेशनशिप बहुत लाइक बढ़ रहे हैं, पीपल आर गेटिंग इनटू इट। सो व्हेन इट कम्स टू दैट, तो उसमें व्हाट आर द सेक्सुअल राइट्स गिवन टू बोथ द पार्टनर्स? सो लिव इन रिलेशनशिप हमारे सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हम्म। इज ट्रीटेड लाइक अ मैरिज ओनली। तो जो जो राइट्स एक औरत को हम्म। शादी में मिलते हैं वो ही राइट्स आपको लिव इन में मिलेंगे, अगर आप ओके। अपना लिव इन प्रूव कर पाएंगे तो। जैसे शादी भी आपको प्रूव करनी हम्म। पड़ती है, यू हैव टू ब्रिंग इन अ मैरिज सर्टिफिकेट, शादी की फोटो कार्ड, बच्चे। ऐसी लिव इन में भी वही होगा। इनफैक्ट हम्म। लिव इन में अगर आपका कोई वार्ड है यानी बच्चा है तो उसको वही हक मिलेंगे जो एक शादीशुदा औरत के बच्चे को मिलेंगे, वेदर हम्म। इट्स प्रॉपर्टी और करेक्ट। मेंटेनेंस और खर्चा। अब ओके, अब लास्ट क्वेश्चन ये कि यार अब जैसे व्हेन वी आर गोइंग टू मूव आउट ऑफ दिस कोविड 19 एंड लाइक हम लोग जैसे धीरे धीरे विल बी कमिंग बैक टू आवर नॉर्मल, न्यू नॉर्मल, लेट्स से न्यू नॉर्मल। सो व्हाट डू हम्म। यू थिंक कि how actively people will be getting into bed with each other, and then secondly what would be the new normal as far as sexual activity goes for people? I think until the vaccine is Mm-hmm. not there, try to be absent. Try not to get involved with people whom जिनके आपको Mm-hmm. लोकेशंस और उनके मूवमेंट का इतना नहीं पता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो Mm-hmm. बिल्कुल ही डोरमेंट कैरियर हो Huh. और आप निकल लें उस वजह से, या आपकी वजह से आपके Mm. घर का या पड़ोस का कोई निकल जाए। तो अभी तो जब तक वैक्सीन नहीं आ रही तब तक मैं पर्सनली सजेस्ट लोगों को यही करूंगी कि प्लीज रैंडम Hmm. लोगों के साथ टिंडर डेट और ये बिंग क्या नाम, मुझे तो नाम भी नहीं पता डेटिंग साइट्स के, वो Hmm. सब पे जो आपको मिल रहा है उसको थोड़ा सा रुक जाए। फिर तो जब वैक्सीन बन जाएगी, इफ यू आर Hmm. वैक्सीन्ड, इफ दैट अदर पर्सन इज वैक्सीन्ड, आई थिंक दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज Correct. कोविड इज नॉट Correct. गोइंग Correct. एनीवेयर, True. इट्स अ True. True. वायरस। चलो on that. हाँ. इट्स नॉट दैट, ऐसा तो नहीं हुआ कि टीबी चला गया, एचआईवी चला गया। हाँ, उनके इलाज शुरू हो गए, शायद Hmm. वैक्सीनेशन भी बन गए, तो ये रहेगा। हमें बस प्रिकॉशंस लेने सही चाहिए और सही. थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। Absolutely. Better be बेटर बी safe than सेफ देन सॉरी। sorry. Chalo, on that note, thank you very much for once again coming on the Unnamed podcast and talking to me here. Yeah, थैंक thank यू you. वेरी मच, आई लव्ड इट।
सो आई होप कि आपको ये एपिसोड ऑफ द अननेम पॉडकास्ट बेहद पसंद आया एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट डोंट फॉरगेट टू फॉलो द पॉडकास्ट वेयर एवर यू आर गेटिंग योर पॉडकास्ट। और मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक और अमेजिंग पर्सनालिटी के साथ। और टिल देन यू स्टे टाइट, यू स्टे कूल एंड लिव लाइफ ह्यूमन साइज।